Hello, I OP Srivastava is going to explain how you can find out the integration certain function by substitution method. In this video, I will discuss some question which can be solved by a very simple substitution method. In fact, in continuation my previous video where I have already discussed regarding substitution, in which case which type of substitution has to be made up. Anyway, here I have taken certain questions. So see, first these questions I have taken. First question I have already solved it also, but how it has been solved that I will discuss. Here क्वेश्चन नंबर मान लीजिए वन लेता हूं मैं इट इज ये there are two question first how it can be solved that I have to discuss. Now see, first I am taking the first one. ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं ये वाला सोल्यूशन कैसे निकाला क्या सोचा मैंने वो मैं आपको समझा रहा हूं जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x पावर दी 1/2 प्लस x पावर दी 1/3 इनफैक्ट 1/2 1/3 में टू सबके डिनोमिनेटर में दो और तीन है तो दो और तीन का एलसीएम लीजिए इस तरह के प्रॉब्लम एलसीएम में दैट इज 6 so you take x is equal to y power the 6 that will solve your purpose तो x इक्वल टू वाई पावर दी 6 लेने से क्या फायदा हुआ हमें जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया देन x become dx y power 6 become 6y power the 5 dy. Now see the benefit of it. Now putting these values in the problem, what we get? Instead of dx we will put 6y power the 5 dy. 6 is outside now. Y power the 5 upon x power the 1 by 2 will become y cube because x is equal to y power the 6. Similarly, x power the 1 by 3 will become y square. Now the whole problem has been changed now. Now it is y power the 5 upon y cube plus y square. Take y square common and this will after solving give you integration of y cube dy upon 1 plus y. Now divide y cube by 1 plus y because in all these case I tell you whenever the power of numerator is more than denominator in that case simplify the simplification method is that you divide numerator by denominator which I have done it here जो मैंने यहाँ किया है उससे क्या फायदा हुआ मुझे देखिए ये सवाल हो गया आराम से इट इज वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन इंटू माइनस वन अपॉन वन प्लस वाई जिसमें सबका इंटीग्रेशन आपको बहुत आसानी से मालूम है तो वाई स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे इट विल बिकम वाई क्यूब बाई 3 वाई का वाई स्क्वायर बाई 2 वन का वाई वन अपॉन वन प्लस वाई का log वाई दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू गेट इट नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y is equal to 1 x power the 1 by 6 so here y cube will give you root x and y square will give x power the 1 by 3 so it is x root x upon 3 plus x power 1 by 2 1 by 3 upon 2 plus x power the 1 by 6 minus log 1 plus x power the 1 by 6. This is the integration which you got it. तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो उसके लिए है सेकंड क्वेश्चन इज दिस सेकंड क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ इसका इंटीग्रेशन दो तरह से किया जा सकता है मैं फिलहाल एक ही तरह से दिखा रहा हूँ आपको दूसरा भी दिखाता हूँ मैं ये है x sin inverse x square upon under root 1 minus x square. In fact, it all the substitution which I have taken it is all after a lot of experience. But one thing immediately you see what that is derivative of x square. Derivative of x square is x. So the first approach should be
put x square is equal to t, and that expression after simplify we will get sin inverse t dt upon under root 1 minus t square. Then again you have to take substitution. But चलिए आया, लेट अस डिस्कस, मैं उसको बता ही देता हूँ. ये मेथड तो होता है, मैं पहले वो जो सिंपलेस्ट मेथड जो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ पहले, क्योंकि सबसे पहले वही मेथड दिमाग में स्ट्राइक करेगा. वो कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ. इसको मैं लिख देता हूँ, और सेकंड मेथड क्या कर देता हूँ मैंने क्या कहा, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. मैं इसको रखता हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. लेट अस टेक, मैं लिख देता हूँ पर ये, इसको कट कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेट सॉरी एक्स square is equal to t. So after differentiate it, what you will get here? You will get as 2x dx is equal to dt. So question will be, वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ये जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, हाँ हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर को t माना है, तो लेट अस रिप्लेस इट बाय t. इसको t कर देते हैं, और x dx इक्वल टू dt बाई 2. तो यहाँ आ जाएगा कंट्रोल F1 टैप 2, और ये हो जाएगा dt. ये dt हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सो इट विल बिकम t स्क्वायर. हियर इट इज, और x यहाँ से हट जाएगा. तो क्वेश्चन विल बिकम साइन इनवर्स t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. यहाँ अगर आप t बराबर साइन थीटा रख दें तो भी कर सकते हैं. साइन इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस टी स्क्वायर होता है. तो बेस्ट यही है कि यही किया जाए, क्योंकि फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है. ये ऑलरेडी हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी ऐसा हो, मैंने आपको बताया होगा कि जब कभी इस तरह से हो, हमने बताया था कि अगर इस तरह कभी आ जाए f fx into f dash x dx, then put fx is equal to t, and that implies you, फिर वो आपको क्या दे देगा, from there you will get here it is, from there you will get f dash x dx. f dash dx is equal to dt. It is f dash here I have done. और इनफैक्ट ये क्वेश्चन कुछ इस तरह भी हो सकता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था
if you get such a situation, then put this. Huh? So same situation is here. Same situation here. So हम क्या कर रहे हैं? Let. हम कर रहे हैं कि sin inverse t, sin inverse t is equal to, आप y मान लीजिए, ठीक है. So you can say it as क्या हो जाएगा? 1 टाइप कंट्रोल 1 माइनस dt is equal to dy. So v क्या हो जाएगा भाई? ये जो हमारा सवाल है यह हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स टी की जगह हमने यहाँ y रखा, सो लेट अस रिप्लेस इट इज बाय y, और 1 अपॉन अंडर माइनस dt इज इक्वल टू dy. सो इस पूरे को हटा के यहाँ पर हम लिखते हैं y एंड dy. बस खत्म. एंड दैट विल गिव यू y dy का इंटीग्रेशन होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है y स्क्वायर बाय 2. तो y स्क्वायर बाय 2 लिख दिया हमने, एंड इज इक्वल टू, अब एक एक करके जो वैल्यूज हैं वो रखते चले जाइए 2. तो y बराबर है साइन इनवर्स t, और t की जगह क्या लिया गया है? एक्स स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ इंटू लगा दिए, फंक्शन लिख लिए, साइन इनवर्स t का स्क्वायर, ये सॉरी मैं यहाँ कर देता हूँ साइन इनवर्स टी, लेकिन हमें क्या चाहिए? साइन इनवर्स टी का स्क्वायर. मैं हाँ, साइन इनवर्स टी का स्क्वायर अपान 2. ओके. तो t बराबर क्या है? t इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो इसको एक्स स्क्वायर से बदल दीजिए, इसको एक्स स्क्वायर से बदल देते हम लोग. t को बदल देते हम लोग एक्स स्क्वायर से, और चलिए इस तरह से इंटीग्रेशन हो जाएगा. इसको चाहो तो आप सेव करते हैं, लेकिन यही चीज मैंने 2 लाइन में यहाँ किया हुआ है आपको. ये क्योंकि मैंने सोचा इसका डेरिवेटिव ये और इस होल का डेरिवेटिव ये है, तो पूरा का पूरा इसको ही हमने t मान लिया, y मान लिया था. लेकिन जैसा कि हमने ये वाला फॉर्मूला आपको समझाया था, उस हिसाब से आपके दिमाग में ये आना चाहिए, उसको आपने इस तरह भी कर सकते हैं. कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि आप इस बात को याद रखें, हमने तभी कहा था पढ़ाते वक्त ही कि ये इस तरह के सिचुएशन में आपको ये मिलेगा, और 99% क्वेश्चन इसी तरह के सब्स्टिट्यूशन में मिलने वाले हैं. ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे किया जा सकता है. कुछ और लेते हैं क्वेश्चन हम. हाँ? अब ये देखिए, e raised to power root x cos e पावर द रूट x अपॉन रूट x dx. ये थोड़ा देखने में टिपिकल लग रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन. एक एक करके सोचिए. रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 1 अपॉन रूट एक्स है. 1/2 की कांस्टेंट वाली बात छोड़ दीजिए. और
ई पावर द रूट एक्स का क्या होगा डिफरेंशिएशन, आपके सामने देखिए। ई पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई पावर द रूट एक्स इंटू 1/2 1/√x dx। और इस अगर ये मान लिया जाए, ये सब्स्टिट्यूशन अगर हम रखते हैं, तो इससे सब्स्टिट्यूशन से क्या फायदा होगा हमें, ये एक साथ सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। अब तो ये सवाल बदल के क्या हो जाएगा देखा जाए तो बहुत आसान हो गया। क्या हो गया, ये हटा दिया जाए कि अगर आप देखें तो ये ई पावर द रूट एक्स जो लिया था हमने, ई पावर द रूट एक्स बराबर टी लिया था, तो उससे ये हो गया और सवाल कितना आसान हो गया। ये टू इधर भेज दीजिए तो ई पावर द रूट एक्स इंटू 1/√x इंटू डी एक्स बराबर डी टी, टू डी टी। तो टू हो गया डी टी नहीं, सॉरी यहाँ डी, यहाँ हमने टी माना, यहाँ वाई लिख दिया है। खैर चलिए हम इसको वाई कर देते हैं, ये इसको वाई कर देते हैं, थोड़ा सा इसको हम वाई कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारा डी वाई। ठीक है, अब वही रख दिया हमने ये, तो 2 cos y dy इज इक्वल टू 2 sin y, इसका इंटीग्रेशन 2 sin y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया, तो 2 × sin ई पावर द रूट एक्स हो गया। देखिए समझने वाली बात इसमें यह है, मैं इसको समझा क्या रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि गौर से हमेशा क्वेश्चन इंटीग्रेशन के केस में थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और ध्यान से चीजों को समझना पड़ेगा। हमने देखा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव तो ये है, ई पावर द रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या, ई पावर द रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो हमको लगा कि ये ज्यादा ही एरिया को कवर करता है, इसलिए ई पावर द रूट एक्स को वाई माना हमेशा होशियारी का काम होगा। तो ये आपको सोचना होगा कि किसको मानने से, हालांकि आप ई पावर द रूट एक्स को मान के रूट एक्स मान के करते तो स्टेप रूट एक्स को मानते तो ना पान रूट एक्स डी एक्स डी टी होता, तो ये होता ई पावर द टी इंटू कास टी डी टी। तो फिर उसको आपको ई पावर द टी को टी मानना पड़ता, फिर 2-3 स्टेप में करता। लेकिन अगर आप सोच सकते हैं कि हमारा सब्स्टिट्यूशन क्या हो ताकि क्वेश्चन ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा और इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास, लेकिन एक एक करके एक दूसरा क्वेश्चन और ले लिया हमने। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। फिर वही बात यहाँ पर, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/√x होता है, लेकिन tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई हैव डन इट हियर। आई हैव टेकन tan रूट एक्स इज इक्वल टू y। आफ्टर डिफरेंशिएटिंग you will get 1/2 sec square root x, sec square root x into 1/√x into dx बराबर dy। Now putting these values, so sec square root x into 1/√x ds equal to 2 dy. That's what I have done it here. I have put it here. तो दो यहाँ आ गया और tan root x was taken as y and rest is dy. So y dy and that is y dy. In fact, I am mistaken. I have done a mistake it here. Y dy का ये जो डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएशन होगा, इट इज y स्क्वायर upon y square. Why I have taken 4? It's a mistake. Anyway, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 2 हो जाएगा। खैर, तो y स्क्वायर बाई 2 है, एंड y का वैल्यू हमने रख दिया tan रूट एक्स होल स्क्वायर बाई 2, ये हो गया। हाँ, यहाँ 2 भी छूट गया, सॉरी, वन थिंग आई हैव आल्सो मिस्टेकन, 2 छूट गया है, 2, और मैं यहाँ कर देता हूँ 2 इंटू 2, यहाँ भी कर दिए 2 इंटू 2, 2 चाहिए तो काट दीजिए, ठीक है। So this way you can integrate it. So rest question I will discuss next day. Okay, I am finishing it here, and keep in mind कि whenever you got any problem, please mail me. My mail address is ओम एड्रेस, मैं अपना मेल एड्रेस यहाँ लिख देता हूँ। My mail address is omrdso
gmail.com, ये मेरा मेल एड्रेस है। आप मेल एड्रेस पर मुझे अपने प्रॉब्लम मेल कीजिए। I will try to explain it. I will, if it is possible, I will make a video it, and I will communicate you how this problem can be taken up. I have a website also. This all thing I have discussed is there in detail. My website is sites.google google.com slash view view slash om gurukul as home. This is the address my website. You can visit it here. अगर आप इसको विजिट करेंगे तो you will get everything, lot of videos, question bank, explanation, everything you will find. It's a complete study package for intermediate, first year, second year, along with IIT preparation and engineering entrance preparation. But there is a problem. It's not a problem. In fact, this way I have taken a method. In fact, everybody cannot it open. You have to register it with me. If you want to visit my website, please mail me your mail address. I will include you. Only then you can open it. When you will open, then you will find there is a question bank, there is a books, there is a explanation, and lot of videos are there. Lot of explanation videos are there regarding of physics and mathematics. Okay, and you will fully satisfied there. Okay. Okay. Thank you. Thank you for watching the videos.